सो पर काया प्रवेश कि थिएटर पे अलग अलग कैरेक्टर्स को जीना पड़ता है, उनकी काया में घुसना पड़ता है। सो उनके कैरेक्टर को जीना पड़ता है। Schauspieler können das machen मीन्स एक्टर, जो भी थिएटर पे कुछ भी प्ले कर रहा है तो वो एक्टिंग कर रहा है। Schauspieler इज एक्टर। Bühne इज स्टेज। So stage belongs to the actor only. Gehört zu Schauspieler. Kreativität is creativity. Emotion is emotion. Gefühle means feelings. Körpersprache is body language. Okay, background noise आ रहा है तो बंद करके रखो इसको ना, आपको खुद को तो होश रहना चाहिए। क्या हो रहा है दीपक? सॉरी सर। गेस्टिक, मिमिक, gestures and facial expressions. स्टीमे का मतलब है वॉइस। यूबन इज प्रैक्टिस। यूबन हम बोलते हैं ना, यूबुंग माक्ट den Meister, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जेल्स बेउस्ट का मतलब है कॉन्फिडेंट होना पड़ता है आपको। जेल्स बेउस्ट, बेउरटाइलन, दूसरे लोग तो कमियां निकालेंगे, कोई बात नहीं। बेइंद्रुकन टू इंप्रेस, अर्वार्टुंगन एक्सपेक्टेशन, क्रिटिक क्रिटिसाइज करते हैं लोग, क्रिटिक। ड्रूक इज प्रेशर, उंटर ड्रूक का मतलब है अंडर प्रेशर। लाइडनशाफ्ट म्यू है, डियालोग है, ड्रामा, थिएटर, नर्वियोजिटेट नर्वसनेस, प्ले, स्ट्यूक, ड्रामा, प्ले। कभी ड्रामा सुनते हैं, कभी प्ले सुनते हैं। ड्रामा का मतलब है वो रिटन फॉर्म, एक तरह से डायलॉग्स वगैरह सब रिटन, और प्ले में वो चीज स्टेज पे आ जाती है लिखी हुई। ये फर्क है दोनों का, ड्रामा, प्ले, प्रेजेंटेशन। ओके, kein Problem, es gibt viele Wörter, aber wir machen jetzt weiter. A1. zuerst die Hausaufgabe. होमवर्क क्या था आपका? पेज नंबर 125. 100 hier. Das meinen Sie? So, this is the homework. Der Bundespräsident arbeitet im Bundeskanzleramt. Richtig oder falsch? Der Bundespräsident arbeitet im Bundeskanzleramt. Richtig oder falsch? False. False. Because चांसलर ऑफिस में प्रेसिडेंट काम नहीं करता। इसमें लिखा है प्रेसिडेंट इज वर्किंग इन चांसलर ऑफिस। नो, ही हैज हिज ओन ऑफिस। Der Club Watergate ist im am Wasser. Okay. In der Friedrichstraße kaufen nur Touristen. Nicht nur Touristen. Auch normale Menschen können kaufen. In der Straße unter den Linden findet man viele Botschaften. Richtig. Richtig. Okay. जो वाटरगेट करके जो क्लब है, हालांकि वो नदी के किनारे ही है, बट इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए इसको गलत कर रहे हैं हम लोग। Ist am Wasser. Okay.
Das haben wir schon gemacht. Haben wir das auch gemacht? Page number 159. 159. Okay. This we have already done. Okay. Aber das war die Hausaufgabe. Okay. Gut. Das zuerst. Maybe Hers, you try first. Read loudly. Ich arbeite seit 3 Jahren als Touristenführer in Berlin. Die Touristen gehen in Alexanderplatz. Aman, Deepak, Museum. was? Answer. Museum. Museen. Museen. मुजेन मतलब म्यूजियम्स. यहां पे मुजेन ही ज्यादा सूट करता है. क्यों? बिकॉज उसके आगे म्यूजियम्स को एक्सप्लेन किया है. Ich arbeite seit 3 Jahren als Touristenführer in Berlin. Since 3 years I am working as a tourist guide in Berlin. Die Touristen gehen gern in Museen. टूरिस्ट लोग जो है म्यूजियम्स में जाना पसंद करते हैं. और फिर आगे समझाया है, एग्जाम्पल दिए, मतलब जी lieben zum Beispiel das Pergamon Museum. For example, they love to visit museums. For example, this museum and this museum, because Alte National Gallery है, ओल्ड नेशनल गैलरी, ये भी म्यूजियम ही है. नेक्स्ट, अमन, विल यू रीड? Viele wollen in Berlin einkaufen. Sie laufen durch Durst. Einkaufsstraßen लग रहा है बाकी लोगों को भी? या सर. या Einkaufsstraßen, बिकॉज फिर आगे एग्जाम्पल दिया है फ्रीडरिच स्ट्रासे का. और ऊपर भी दिया सर einkaufen. Berlin einkaufen. हाँ, बर्लिन आइनकाउफन. ओके, सो viele wollen in Berlin einkaufen. यस, उससे हिंट मिल गया कि बहुत सारे लोग तो बर्लिन में शॉपिंग करना चाहते हैं. जी laufen durch Einkaufsstraßen, शॉपिंग स्ट्रीट्स में जाते हैं. बिलिप्ट इस्ट फ्रीडरिच स्ट्रासे, और फ्रीडरिच स्ट्रासे तो बहुत ही पॉपुलर है. ओके, श्रुति, द टूरिस्टन wollen. Okay, you are outside. Okay, then next, Vikram, will you? Deepak, you can read. सॉरी सर, मैं एक्चुअली कोई कॉल पे था. कौन सा चल रहा है? Okay, कोई नहीं, आप देखो जब तक. दीपक, you continue. या सर. Private Street, Straße, die Touristen wollen auch die Möglichkeiten sehen mit dem Bus fahren sie zum Regierungsviertel. Viertel. Okay, continue. Dort gehen sie in den Reichstag oder ins Bundeskanzleramt. Am Abend laufen sie oft über
then Alexanderplatz. Über den Dort, okay. dort gibt es viele Bars und Discos. Yeah, über den Platz. Yes, so there are many discos there. शॉपिंग करने जाते हैं बहुत सारे लोग, अच्छा लगता है उनको. दी टूरिस्टन वोलन auch die Jehenschuldigkeiten sehen. They also want to see some worth visiting places, monuments. Mit dem Bus fahren sie zum Regierungsviertel. जो यहाँ पे कई सारे मोन्यूमेंट्स हैं उस जगह पे जाते हैं ये. Dort gehen sie in den Reichstag, पार्लियामेंट देखते हैं, बुंडेसकांसलराmt, चांसलर ऑफिस देखते हैं. und am Abend laufen sie oft über den Alexanderplatz. इवनिंग में अलेक्जेंडर प्लाट्स पे टाइम स्पेंड करते हैं. Dort gibt es viele Bars und Discos. There are many bars and discos. Okay. Yeah, Vikram, now are you there? Yes, sir. 159. Okay, try this one maybe. Paula und Alejandro, Eliandro. Common House Madrid. Sie besuchen Freunde in Berlin. Sie gehen am Brandenburger Tor. Correct है sir? False. Zum Som is correct. 9 moments correct और लिखने का क्योंकि ये नहीं आता है. Okay, Aman, you continue. Zum Brandenburger Tor und machen viele Fotos. Sie fahren mit dem Bus am Bundeskanzleramt vorbei und laufen in den Scholzbrücke. Uber. Über die Scholzbrücke. Über die, ja, Schlossbrücke. सर laufen के बाद तो इंजन आएगा ना? ओ इधर इधर, हाँ इधर लिखना था मुझे. मोमेंट. Über die laufen, über die. Am Nachmittag gehen sie in den Berliner Dom hören ein Konzert. Am Abend essen sie Pizza und gehen danach zum Disco. सुन तो ऑलरेडी कर लिया ना हमने यहाँ. In the disco. Der Dom, the disco, the Brücke, der Platz. इनसे भी हिंट मिलेगा अगर ये आर्टिकल भी याद रहेंगे ना. अगर मान लो ये पता हो हमको कि डोम डेर डोम होता है तो हमको ये आइडिया लग ही जाएगा कि इनके साथ डेन क्यों आ रहा है. आकुजाटिव गेहन इज ब्रूके इज ब्रिज. सो श्लॉस ब्रूके, दे गो ओवर द श्लॉस ब्रूके. am Nachmittag gehen sie in den ब्रिज का नाम है सर. हाँ. Then Dom and sie hören Konzert. Am Abend essen sie Pizza und gehen danach. They eat pizza and then they go to disco. In the disco, Wilder Renate. This is the name of the disco. सर 157 और 158 हो गया सर. Just a moment. Ich checke mal.
157 और 158 भी दिया था आपने। हाँ, ऊपर वाला 8 und 8 und 9 A und B A und B। दिस वन यू मीन? हाँ हाँ सो ऊपर वाला भी। नहीं, ये तो लिसनिंग का है ना, लिसनिंग का सुन के करना पड़ेगा आपको। हाँ करेक्ट। ये सुन के करना पड़ेगा, ये हम लोग ट्राई करेंगे अभी। और ये हमको ये 10th वाला कल किया था हमने, नहीं? Können Sie mir helfen? Lesen Sie den Dialog und ergänzen Sie die Wiederholungen, means repetitions, echo होगा इसमें। Können Sie mir helfen? Could you please, can you please help me? Wie komme ich zur Humboldt Universität? How I come to Humboldt University? zur Humboldt Universität मतलब उसने जो बोला उसी को इसने रिपीट किया। इसने बोला zur Humboldt Universität और यहां पे रिपीट किया इसने। अच्छा, Humboldt यूनिवर्सिटी जाना है। Zuerst gehen Sie hier links. First of all, you go from here left. Links is left. Also here links। also here links। Yes। मैंने also here links लिखा, मगर नीचे बे में जो Hören Sie und Kontrollieren मेरे ख्याल से चेक होगा, तो उसमें also zuerst here links करके Hören में था, तो ये गलत है। और also here links, ये तो दो लोग बात कर रहे हैं, एक बंदा सुन के उसको रिपीट कर रहा है कि मान लो कोई बोले कि आप पहले लेफ्ट चले जाओ, अच्छा पहले लेफ्ट जाना है, सो उसकी बात को रिपीट करना है हमको। जैसे इसने बोल दिया स्वेर्स्ट गिहेंजी हियर लिंक्स, तो आप इतना भी कह सकते हो आल्जो लिंक्स, आल्जो लिंक्स, अच्छा इतना भी बोल सकते हो। या फिर आल्जो हियर लिंक्स, वो भी बोल सकते हो। अच्छा यहां से लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट, वो आप पे डिपेंड करता है। सो लिंक्स भी सही है, हियर लिंक्स भी सही है, सुएर्स्ट जो लिंक्स गेन वो भी सही है। गिनाओ हियर लिंक्स के बाद गेन लगाना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है ना। सुएर्स्ट हियर लिंक्स, अच्छा पहले लेफ्ट, करेक्ट। रिपीट कर रहे हैं हम लोग करेक्ट। आपस में कम्युनिकेशन कंफर्म करने के लिए कि अच्छा यही बोला है ना आपने, मगर वर्ब की जरूरत नहीं है गेन। हाँ सेंटेंस नहीं है ना, ये तो केवल वैसे ही हाँ में हाँ मिला रहे हैं। नेक्स्ट वाले में कह रहा है ये गिनाओ, एग्जैक्टली। Und dann gehen Sie bis zur dritten Kreuzung geradeaus and then till third crossing सीधे, थर्ड क्रॉसिंग तक मुड़ना मत। ओके Okay. Dann bis zur dritten Kreuzung geradeaus? करेक्ट। ओके dann bis zur dritten Kreuzung geradeaus। अब गेहन जी की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने उसको बोल दिया ओके डन, ओके डन bis zur dritten Kreuzung geradeaus। इसको रिपीट कर सकते हैं ऐसा कैसा। अच्छा फिर थर्ड क्रॉसिंग तक सीधे जाना है ना, या गिनाओ, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा। Auf der linken Seite sehen Sie dann die Humboldt Universität एंड इतना जाओगे तो लेफ्ट में तुमको हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी दिखेगी। Dann sehe ich Humboldt Universität, dann sehe ich auf der linken Seite Humboldt Universität, genau। Dann sehe ich die Humboldt University auf der linken Seite। वो भी चलेगा, auf der linken Seite, dann sehe ich, ja genau richtig। तो मतलब बंदा बता रहा था और आप उसको साथ के साथ टैली कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो कि अच्छा ऐसे ही बोल रहे हो ना आप,
पहले लेफ्ट फिर राइट फिर सीधे जाना है ना, हाँ फिर सीधे जाना है। ओके, ऐसे। ये रिकॉर्डिंग में हम्बोल्ड यूनिवर्सिटी लास्ट में था, तो मैंने सोचा गलत कर दिया मैंने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक बार ये हमने बिना देखे कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग में तो वो अपन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एग्जैक्ट उसमें आ रहा है ना। तो कौन सा ज्यादा सही है सर? इन दोनों भी सही है। रिकॉर्डिंग में आ रहा है उसको फॉलो करो आप, बाकायदा आपको रिकॉर्डिंग दे रखी है तो उसको सुन के लिखो, दैट इज बेस्ट। ठीक है ना। Here there is a text and you have to frame questions. Woher kommen die Touristen? Genau. Woher kommen die Touristen? हर्ष आप आंसर दो। Die Touristen kommen aus Kommen. kommen aus Großbritannien, Spanien, Italien und dann USA. Den USA. USA वैसे दी USA होता है प्लूरल, यहां पे ये हो गया आउस डेन USA, क्योंकि डाटिव में प्लूरल का दी फिर डेन प्लस एन होता है ना, तो इसलिए इसको आउस डेन USA कर दिया इन्होंने। ओके, नाउ मे बी नेक्स्ट वन हर्ष, यू ट्राई नेक्स्ट एंड अमन विल रिप्लाई। मे बी हर्ष यू रीड आंसर फर्स्ट, अमन क्वेश्चन बनाएगी, तुम पहले आंसर पढ़ दो। Im Jahre hat Berlin 20 Millionen Übernachtungen. यारे है या केवल यार है? Jahr. इम यार Im हार Jahr hat Berlin 20 Millionen मिलियनन, Übernachtungen. यस, नाइट स्टेज, एक साल में 20 मिलियन लोग आके बर्लिन में रुकते हैं, या इतनी नाइट्स वहां पे बुक होती है, होटल्स वगैरह बुक हो जाते होंगे। सो इम यार एक साल में 20 मिलियन। ओके, सो अमन फ्राग है। Wie viele Mann Übernachtungen? वेरी गुड, बिकॉज 20 मिलियन तो आंसर था, तो ये आ जाएगा वी फीले यूबरनाchtungen। यूबरनाchtungen वर्ब कौन सी है? इस में वर्ब कौन सी है वही हम क्वेश्चन में ले लेंगे। हार्ट ना, सो वी फील है। So, haben नीचे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? नीचे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? Berlin. बर्लिन है ना, तो ऊपर वाले में भी बर्लिन ही है। Okay. Im Jahr hat Berlin 20 Millionen Übernachtungen. Wie viele Übernachtungen? Hat Berlin. सिंगुलर है ना बर्लिन, तो हार्ट बर्लिन इम यार, इसका मतलब हुआ कि एक साल में बर्लिन में कितनी नाइट्स बुक होती हैं। वी फीले यूबरनाchtungen। जैसे आपको वेल्स का बताया था कि वेल्स के साथ में कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, कि वेल्स बुक कुछ ना कुछ आता है, इसके बाद में कोई नाउन। ऐसे ही जनरली वी फील और वी फील में जनरली आपको कोई ना कोई नाउन दिखता है यहां, क्योंकि हाउ मच मिल्क यू ड्रिंक, तो हाउ
हाउ मेनी पीपल आर यू, तो हाउ मेनी पीपल ऐसे करके कुछ ना कुछ आता है इनके साथ, वेल्स के साथ, वी फील के साथ और वी फील के साथ। ओके, विच होता है ना सर? यस, वेल्स इज विच। सर वी फील ओवरनाफ्टुंगन इन यार हार्ट बर्निंग, ये करेक्ट होगा सर? नो, ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि वर्ब जो है वो सेकंड पोजीशन पे आनी बनती है। अच्छा, वर्ब का भी तो रूल फॉलो करते हैं हम लोग डब्ल्यू वर्ड के साथ, सेकंड पोजीशन पे वर्ब, तो इसीलिए हम लोग यहां भी सेकंड पोजीशन पे वर्ब रखते हैं और इसमें भी वी फील के साथ ये तो एक साथ है, फिर सेकंड पोजीशन पे ये वर्ब भी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। या अमन पहले आंसर। Viele Touristen besuchen das Brandenburger Tor. Viele Touristen besuchen das Brandenburger Tor. Okay, so was viele Touristen. देखो आंसर तो है ब्रांडनबुर्गर टोर, ये तो आंसर है, तो आंसर को हटा दो तो क्वेश्चन ही बचता है फिर। Was besuchen viele Touristen. यस, was besuchen viele Touristen. यस, टूरिस्ट क्या विजिट करना पसंद करते हैं? Was besuchen die viele Touristen, दी की कोई जरूरत नहीं है। the tourists. द लगाएंगे तो फिर फीले की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, और हम लोग जनरली वो ले लेते हैं जो इसमें दिया हुआ होता है, इसलिए हमने फीले टूरिस्टन ऐसा कैसा ले लिया। अच्छा, यहां पे द टूरिस्ट दे रखा था तो हमने द ले लिया। ओके, ठीक है, उसी में से लेते हैं हम लोग आंसर हटा के। सो देन हियर बर्लिन इज यूपर। सर ये अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो व्हाट प्लेस डू मोस्ट टूरिस्ट विजिट? मोस्ट तो इसमें लिखा हुआ नहीं है ना, फीले many many, what many tourists visit, yeah. so what do many tourists visit ना। तो डू की जरूरत नहीं है, तो डू जर्मन में तो डू डज होता ही नहीं। मेरी बेटी बोलते रहती है, दिमाग खाते रहती है, टून टून टून, कुछ तो टून बोलते रहती है। was möchten Sie tun? हाँ, tun मतलब to do, अच्छा, या तो टून लगाने की जरूरत नहीं है सर फिर? नहीं है जरूरत। ठीक, बिजू कोई ना कोई एक वर्ब चाहिए ना अपन को, तो जब अपने पास वर्ब है एक वर्ब चाहिए बस सेंटेंस में, वर्ब उसमें ऑलरेडी आंसर में दी होती है जनरली, वही वर्ब हम काम में लेते हैं। ओके, ओके, रीड दिस वन। Sir, shall I read? यस प्लीज। Hi Julia, Berlin ist super. Die Stadt ist एस्ट Klasse. Klasse. Wir wollen gleich noch eine Stadtrundfahrt machen. Danach will ich in die Nationalgalerie gehen. Anschließend wollen anschließend Anschließend wollen Maria und ich auf der Friedrichstraße bummeln. Und heute Abend wollen wir noch ein Musical
लेगे इज लीबे ग्रीशन, ग्रीटिंग्स, लेगे इज ग्रीटिंग्स, लीबे ग्रीशन und कार्ला। हाय यूलिया, इसकी जो एक्सरसाइज है ये है कि मोडाल वर्ब तो वोलन है और उसके साथ में कोई एक और वर्ब है इन्फिनेटिव फॉर्म में, उनको हमको हाईलाइट करना है, मोडाल वर्ब और इन्फिनेटिव वर्ब। सर वी वॉलन और वो माखन। तो दो ही आई हैं क्या बस, वोलन वॉलन और माखन। उसके बाद जाइन तो अलग हो गई, सर वॉलन, फिर वोलन, गेम, फिर गेन, फिर वॉलन, जेन, बुमेल। ओके राइट। ओहो, 4 लाइन पूरी नहीं है सेंटेंस में, लेकिन वर्ब की देखो, वर्ब देखो कितनी करी है काम में लिए इन्होंने, वाह। सो मोडाल वर्ब के साथ मेन वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में आती है, ये हाईलाइट कराने के लिए हमको ये टेक्स्ट पढ़ाया इन्होंने। सर हमने मीनिंग क्या होता है? डू यू माइंड? बुमेल, बुमेल का मतलब होता है जस्ट रोम अराउंड, बिना पर्पज के हम लोग शाम को मान लो थोड़ा सिटी घूम जाते हैं, ऐसे ही पैदल ही घूम जाते हैं भले ही, ऐसे ही, हाँ तफरी मारना, हाँ टाइम पास कर जाना थोड़ा सा, तो आई रोम अराउंड के लिए इश बुमेल, या बुमेल है इश बुमेल है, यस। कल हमने बात किया था स्टार्ट मूवमेंट, स्टार्ट बुमेल ना आया था ना उसमें, वही जस्ट सिटी में, हाँ वही है स्टार्ट बुमेल, बुमेल। सर हमने 9th भी किया था सर, 9th भी दिया था आपने होमवर्क। नहीं दिया नहीं होगा मैंने 9th, लेकिन हाँ ये हाँ, लेकिन ये बचा हुआ है, हम लोग करेंगे अभी। इसमें करना क्या है पहले ये समझेंगे, ओरिएंटियरुंग मिट डेम स्टार्ट प्लान, कि ये सिटी मैप जो दे रखा है इससे हमको ढूंढना है। सर पहली बात मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, ये बंदा है कहाँ, ये समझ नहीं आया, मगर ऐसे ही मैं गेस करके लिख दिया। कुछ लिखा है तो गैस, ये मतलब यहां से करेंगे, ये तो बी पे है, पहले हम लोग ए वाला देखते हैं, तुमने क्या लिखा है वो भी सुनेंगे, बट पहले इसका क्वेश्चन बनाओ, क्या क्वेश्चन बनेगा? Entschuldigung, wie komme ich zur Agnes-Ernst-Reuter-Class? सुम कर दो इसको, सुम, बाकी सही है एकदम। वी कोमे इश, ऐसे लिखिए वो इस्ट इन्वेस्ट वाटर क्लास। ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल, वो इष्ट कर सकते हैं, वी कोमे इश सुम कर सकते हैं, सर वी कॉमे क्या होगा? वी ये नहीं होगा? हो सकता है वी गे है इस भी हो सकता है, वियर जूखन भी कह सकता है कोई, वियर जूखन प्लाट्स। सो ये कोमे क्यों हो सकता है, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जिससे पूछ रहे हो वो किधर है। मान लो वो बंदा वहां पहले से है तो आप कहोगे वी कोमे इस, यार कैसे आऊं मैं यहाँ, और वो आपके पास ही खड़ा है, उसी से पूछ के जा रहे हो तो आप बोलोगे यार वैसे कैसे जाऊं, तो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे ना। वी कोमे इस, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम बोल रहे हैं स्टूडियो रूम को, मतलब वो हमारे सामने खड़ा है। हाँ उसमें उस हिसाब से लॉजिकल वी गे है इस बैठेगा, यस। या फिर वो इष्ट या वीर जुक, सुना रहेगा ना सर, क्योंकि कॉमे तो अकुजाटिव हुआ और प्लस
मास्कुलिन हुआ। यस, सो सू जो है ना, सू वो डाटे में वो डाटिव है, सू के बेसिस पे हम वो लेंगे सुम कर रहे हैं इसको। सू प्लस डेम होगा ना डाटिव में। अच्छा, हाँ, सू की वजह से कॉमे का ओवरराइड हो जाएगा। हाँ, और राइड होगा। प्रीपोजिशन अगर होती है, जैसे डाटिव या आकुजाटिव प्रीपोजिशन अगर है ना, तो हम वर्ब की भी नहीं सुनते, उस प्रीपोजिशन की चलती वैसे है। भी सर फर्स्ट ये क्वेश्चन और जो ये वर्ब है वो तो वैसे भी नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव है बिकॉज़ द सब्जेक्ट है। उसके बाद से हमारा डाटिव बनेगा, बट पहले को तो हम एज अ नॉमिनेटिव ही ट्रीट करेंगे। नहीं, लेकिन आपने क्वेश्चन समझा क्या? वो क्या है सॉरी, क्वेश्चन, क्या पूछा इन्होंने? उसने पूछा है कि ये रोइटर क्लास कहाँ पे है। नहीं, इन्होंने पूछा कि सू का सुअर या सुम क्या डिसाइड होगा। वो तो उसके बेसिस पे हो गया ना, क्योंकि हमने सू वाली प्रीपोजिशन लगाई है। हाँ। अगर मैं उससे पहले वर्ब की बात करूँ तो वो वर्ब नॉमिनेटिव है, इसलिए वर्ब के बेसिस पे नहीं लगी हमारी, सू के बेसिस पे सुन लगा है। हाँ, ये बात है, क्योंकि वर्ब का होना नहीं होना मायने नहीं रखता। सू आ गया तो अब सू से ही चलेगा फिर। करेक्ट, So when preposition comes, it's only we have to take with the preposition, not with the verb. करेक्ट। इन केस ऑफ आकुजाटिव एंड डाटिव प्रीपोजिशंस, करेक्ट। बिकॉज टू वे में तो हम लोग वर्ब की हेल्प से ही डिसाइड करते हैं ना। करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ब्रिटिशोन। तो वापस से यहां करते हैं। शोल्डिगोंग तो हो गया ऑलरेडी, वो ईस्ट। फिर इसमें आपको बोलना है कि पहले आप आम्पल तक जाओ। सुएर्स्ट गेहनजी, सुएर्स्ट गेहनजी सुअर आम्पल। पहले तो आप ट्रैफिक लाइट तक जाइए, फिर सीधे चले जाओ रोड के साथ साथ। सुअर लगाने की जरूरत नहीं है। दन गेहन जी गिराड आउस ऊलान स्ट्रासे एंटलांग। एंटलांग खुद लास्ट में आता ही है, इफ यू रिमेंबर। आकुजाटिव प्रीपोजिशन है एंटलांग। एंटलांग खुद ही प्रीपोजिशन है, इसलिए कोई सू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। ऊलान स्ट्रासे के साथ साथ होलो, alongside. Und danach links gehen Sie geradeaus, dann sehen Sie der Reuterplatz. so danach links भी कह सकते हैं। danach gehen Sie links। Dann gehen Sie auf den Platz। Okay। Danach links gehen Sie geradeaus, जैसे take left, I mean then next take left and then straight, then you will find Ernest Reuterplatz। सो जो भी आप ये सुएर्स्ट दान दानाक यूज करोगे, इसके बाद में वर्ब यूज करनी है आपको। या तो सेंटेंस ही नहीं बनाओ, सेंटेंस ही नहीं बनाओ तब तो चलेगा दानाक लिंक्स, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट। सेंटेंस नहीं बनाया इसमें हमने, लेफ्ट राइट ही बोल दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सेंटेंस बनाते हो तो वर्ब सेकंड पोजीशन पे लेनी है, Okay। इसलिए। So
फिर गेहन जी गेराडोस की जरूरत नहीं है सर इसमें, क्योंकि हम स्ट्रेट जा रहे हैं। दनाक गेहंजी लिंक्स, दनाक स्ट्रेट कहां जा रहे हो? स्ट्रेट तो यहां जा रहे हो आप, ऊपर वाले की बात कर रहे हो क्या? यहाँ मैप में देखिए सर, उल्लांस के बाद में जब लेफ्ट जा रहे हैं, बहुत सारे तरीके से, ये बहुत सारे तरीके अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। ओके, लेकिन आपके हिसाब से देखते हैं अभी एक बार, ये देखा नहीं मैंने, अब देखूंगा। बोलिए, मतलब कहां से कहां इन्होंने रॉयटर प्लाट्स पूछा, तो रॉयटर प्लाट्स कहां पे है इसमें? ढूंढो सबसे पहले इधर ये वाला, हाँ, ये रॉयटर प्लाट्स है, ठीक है। और इन्होंने बोला, पॉइंट भी नहीं बता रखा कहां से है, तो आपने बोला आप अंपल तक जाओ, तो आप कहां से मान के कर रहे हो इसको? मैं यहाँ ठीक से मुझे दिख नहीं रहा, एक सेकेंड। सिर्फ अगर आंसर में लेफ्ट लिखा हुआ है तो हमें शायद वही लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ना लेफ्ट लेते ही हो। अगर सीधा होता तो वो नीचे ही बता देता कि लिंक्स एंड देन गेरार्ड हाउस। करेक्ट। नहीं, कहां से चल रहे हो? सर मैं लास्ट लाइन को पढ़ रही हूँ, उसमें लिखा है गेनाक लिंक्स, तो हम उसी को ले लेते हैं ना, उसी को कंसीडर कर लेते हैं। फिर हम गेरार्डा हाउस, गेरार्डा हाउस को ना ही लें, मतलब हाँ, मतलब उसको जबरदस्ती, हमको तो इसको फॉलो करना है भाई, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको फॉलो करना है। राइट, वही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ हाँ, हम लोग ये जाविग्नी क्लास में है सर एक्चुअली। तो यहाँ ये साविग्नी क्लास जो है, ये मिडिल बॉटम में है, यहाँ पे है, करेक्ट। यस। ऊपर, थोड़ा ऊपर, यहाँ उसके राइट में है ना सर। तो हम इधर से स्ट्रेट जाएंगे पहले आमफेल से, और ऊपर हार्डनबर्ग जाएंगे। तो आप ये कह रहे हो कि ऐसे जाएंगे? हाँ, यूं जाएंगे, और उधर से ठीक है। सो गेहनजी श्वेर्स्ट सुअर अंपल, तो अंपल तो यहीं से यहीं तक, अंपल तो यहीं तक आ जाएगा, अंपल तो यहीं होगा ना, ट्रैफिक लाइट तो चौराहे पे ही होता है। करेक्ट। तो यहां भी एक सेविंग प्लाट्स है, इधर भी है, तो करेक्ट। तो पहले तो यहीं तक लाने के लिए एम्पल वाला काम तो यही हो गया। उसके बाद में इसने लिखा है दान गेहनजी गिरार्ड आउस उलान स्ट्रासे एंटलांग, तो उलान स्ट्रासे। सर ये सेविग्नी क्लास के पास जो एक जीरो की तरह है सर्कल, मैं सोच रहा था वो है सिग्नल या चौराहा। ओके, जैसे हर जंक्शन पे जहां सर्कल सर्कल लगा है, आई थिंक दैट इज द ट्रैफिक फ्लैग्स। या मे बी यस, खानजाइन। उलान स्ट्रासे दिख गई आपको? नॉट विजिबल। रास्ता यहाँ लेफ्ट साइड में है सर, सेविग्नी क्लास के। एक मिनट, इसको हटाता हूं मैं, यहां से देख, ये उलान स्ट्रासे यहां है, इधर नीचे है। ओके, अब रिपीट करो एक बार, सुएर्स्ट, ट्राई करो, कौन सा वाला सर? शुरू से वापस बोलो। आ वाला सर या बे वाला? आ वाला, बे में तो Entschuldigung, wie komme ich zum Reuterplatz? Zuerst gehen Sie zur Ampel, सुअर, dann, सुअर अम्पल, dann gehen Sie geradeaus Ullandstraße entlang, dann danach links, dann
Zane, Z, Erder, Z, Der, Ernst, Reuterplatz. ओके, ये हुआ पहला वाला पार्ट। अब दूसरे के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, राइट। यहां पे इसमें मैसेज किया है लीबे नाडीने उन स्टेफी। किसी ने लिखा है, बेटरमान ने लिखा है कि डियर नाडीने उन स्टेफी बिटे कॉमन जी 19 उअर सुअर डोइचन ओपेर। ये है बी कि आप डोइचे ओपर में आओ। तो पहले वाले का तो आपने सेविंग प्लाथ से फिर गिरार्ड हाउस ऐसे जा सकते हो, अब कोई ऐसे भी जा सकता है। हाँ, एक्चुअली मैं वो लिखा था, है ना? ऐसे जाके। हाँ, ऐसे जाके और फिर आपने क्या किया, उधर से लेफ्ट, तो उसमें ऐसे क्रॉस करके राउंड अबाउट कुछ नहीं था, तो मैंने सीधे उसके बिल्डिंग के अंदर में से निकल गया। हाँ ठीक है। तो आपको बोलना है फोन हियर लिंक्स, करेक्ट। लिंक्स, फोन हियर लिंक्स und dann wieder gerade aus bis। हाँ, उसीलिए मैं गैराडा हाउस लिखा सर। हाँ ओके ठीक है, लिंक्स dann links und dann geradeaus bis Ernst Reuter Platz, या फिर इतना भी बोल सकते हो dann gehen Sie geradeaus dort sehen Sie Ernst Reuter Platz, there you will see Reuter Platz। ओके, दानाक लिंक्स एएनजी गैराडा हाउस, ये करेक्ट है सर? दनाक, दनाक लिंक्स पे खत्म करना पड़ेगा, देन लेफ्ट, और फिर नया सेंटेंस बनेगा। अच्छा, वहां तो फिर मैं उड़ लगा देता हूँ। देखो ये माइनस बीच में आया है, इसका मतलब है कि वो एक जगह रोक दो इसको, दनाक लिंक्स और फिर दान जेहन, दान जेहन जी ऐसे। उन से कॉन्जुगेट नहीं कर सकते सर दानाक लिंक्स के बाद में, या डॉट लगाना ही है? उंट को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उंट दान जेहन जी ऐसे बोल दो। लेकिन यहां लिखा हुआ नहीं है, तो जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करना चाहिए हमको, ठीक है ना, कि दनाक लिंक्स और उसके बाद में लेफ्ट दान जेहन जी। इन्होंने कहा है कि देन यू विल सी रॉयटर प्लाट्स। बी वाले में कहां बुलाया इन्होंने, लीबे नाडीने उन स्टेफी, नाडीने उन स्टेफी बिटे कॉमन जी 19 उअर सुअर डोइचन ओपेर। बेटर वन कह रहा है डोइचन ओपेर, तो डोइचन ओपेर दिख रहा आपको, या ओबन लिंक्स, या सो ये वाला हमको तो यहाँ भी सुर निकल गया क्योंकि वही मिस्टेक किया मैंने। नादीने und sind im Café am Savingplatz, मतलब है यहीं पे वो, करेक्ट। ठीक है। फर्स्ट गो स्ट्रेट along Savigny-Platz, that is zuerst gehen Sie geradeaus, Savigny-Platz entlang, und dann die nächste dritte Kreuzung rechts, ओके, danach सो पहले पहला हो गया गिराड आउस und Savingplatz entlang। richtig, ओके, आजो जी sind hier, जहां भी थे ये इन्होंने बोल दिया geradeaus und इस पे चला रहे हो क्या, इसको इस पे चला रहे हो, उधर चला रहा हूँ। हाँ, उधर चला रहा हूँ। इधर चला रहे हो, तो इसका नाम है कांट स्ट्रास है। हाँ, इस तरफ सर। एक्चुअली वो थोड़ा नीचे है सर, सेविग्नी-प्लात्स वहाँ जहाँ आमफल है, जहाँ जीरो है, जहाँ आपने वहां से लेफ्ट, यहां से जाना इधर है इनको। अगर इनको जाना इधर है तो आप इस रोड पे, इनको मेन रोड पे ले लो,
वहां नहीं सर, और नीचे। इधर है के नहीं, बीच में, उसके इसके बीच में एक रोड है ना सर। हाँ, तो इस रोड का तो कोई नाम ही नहीं दे रखा। वो सेविग्नी प्लाट्स है ना सर, सेविंग, वही है। हाँ वो सेविंगनी प्लाट्स है। तो आप कह रहे हो कि सेविंगनी प्लाट्स के एंटलांग इसी में जाना है, यूं? करेक्ट, क्योंकि हमने इससे पहले अज्यूम किया था कि जो जीरो है या जो सर्कल है वो आर्मफुल है। और कैफे आर्म सेविग्नी प्लास, सो द कैफे इज ऑन द सेविग्नी प्लास ओके, क्रॉसिंग। या देन उंदान दी नेक्स्ट ड्रिटर क्रॉसिंग, सो उसके बाद में थर्ड क्रॉसिंग ऑन द राइट। हियर ऑन हियर, रिश्तिश। ओके। देन ड्रिटे स्ट्रासे, इसको बोलेंगे ड्रिटे स्ट्रासे रेस्ट्स। ये तो हो गया, पहले के साथ लगा देंगे zuerst, दूसरे के साथ लगाएंगे दान। दान गेहन जी, उंडदान लगाया मैं, उंड की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला तो खत्म ही हो गया। zuerst gehen जी gerade aus an Savigny Platz entlang, dann gehen जी बोल दो, या फिर gehen जी की भी जरूरत नहीं है, सीधा भी बोल सकते हैं dann dritte Straße rechts। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सर, देन द नेक्स्ट थर्ड क्रॉसिंग। सर ये क्रॉसिंग हुआ ना सर, ये स्ट्रासे कैसे हुआ? हमने कल डिस्कस किया था ना कि जो चौराहे हैं वो क्रॉसिंग है। तो क्रॉसिंग है तो क्या मतलब, वो कोई रोड भी तो है, तो वो पहला तो ये हो गया एर्स्टे स्ट्रास है, तो क्रॉस है तो वो रोड भी तो है उधर। तो एर्स्टे स्ट्रास है रेस्ट्स, दस इज स्वाइटे स्ट्रास है रेस्ट्स, ड्रिटे स्ट्रास है रेस्ट्स। अच्छा, ड्रिटे स्ट्रास है रेस्ट्स। मैंने किसी लाइन में देखा था सर कि वो थर्ड क्रॉसिंग के राइट में भी या सेकंड क्रॉसिंग के राइट में भी बोल देते हैं। बट एनीवेज, फिर आगे बोलो। Geradeaus zur Lieblingsstraße entlang und die nächste Kreuzung links। और भी किसी ने लिखा है क्या? यहां से फिर आप जा रहे हो, जब यहां पहुंच गए आप, तो इस स्ट्रीट का नाम देखो, लिबनिट्स स्ट्रासे बोला इसको, लाइबनिट्स स्ट्रासे। dann geradeaus Leibniz Straße entlang bis Bismarck Straße। आप बोलो कि इस पे सीधे जाते ही जाओ, बिस्मार्क स्ट्रास है, ये वाली रोड है, ये बिस्मार्क स्ट्रास है। टिल, बिस बोलना पड़ेगा अपन को, बिस्मार्क स्ट्रास है। आप बोल सकते हो गिराड हाउस, ऐसे भी कह सकते हो नोखमाल गिराड हाउस। फिर से, पहले एक बार जा चुके हो तो नोखमाल्स गिराड हाउस बिस्मार्क स्ट्रास है। तो फिर बंदा यहां तक पहुंच जाएगा। फिर यहां से जैसे मैंने देखा है सर, यहाँ से
फिफ्थ लेफ्ट। फिफ्थ लेफ्ट ऐसे बोलते नहीं है जनरली, अच्छा, है ना, बहुत ज्यादा हो गया, दूसरा तीसरा ठीक है, फिफ्थ लेफ्ट है बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट और आगे क्या है कि वो बड़ी रोड आ रही है, फेमस रोड आ रही है, तो आप ऐसे बोलो कि उस रोड तक चले जाओ। अच्छा, बोलने को बोल सकते हैं कि तुम यहां से सीधे जाओ, 18 नंबर की रोड आएगी लेफ्ट में, तो वो गिनता ही रहेगा 18, कहीं चूक गया, कहीं एक गड़बड़ हो गया तो 17 के बाद गड़बड़ हो जाएगा। सो मेन रोड जो आ रही है बिस्मार्क स्ट्रास है, वो बताओ उसको, है ना, क्योंकि वो 3-4 मिस कर गया, मान लो इसको मिस करके इधर घुस गया तो फेमस सी रोड है, उसका नाम लेना ठीक रहता है। करेक्ट। मैं खुद बहुत बार ऐसी छोटा सा स्ट्रीट मिस हो गया ड्राइविंग करते करते, तो कहीं और पहुंच गया। हाँ होता ही है ऐसे। यहां तक आप आ गए, तो अब इसको किधर भेजना है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लिंक्स। ओके। सो यहां तक आ गए, डन। Dann gehen Sie geradeaus und auf der linken Seite ist Deutsche Oper. यहां से आप उसको कह रहे हो कि गेहनजी लिंक्स। अब वो बंदा जब इधर चल रहा है तो उसके राइट साइड में आएगा, लेफ्ट में नहीं। dann links und dort जेहनजी मैं ब्लू वाला देख रहा था एक्चुअली। रेस्ट्स, डॉट जेहनजी रेस्ट्स, और वहां आपको राइट साइड में दिखेगा डॉइचे ओपर। मैं एक बार चेक कर लूं बाकी लोग यहाँ है ना, हर्ष सब हो ना यहाँ। ब्लू वाला डॉइचे ओपर देखा सर मैं एक्चुअली, लेकिन ओके ओके ओके, आपने ब्लू में भी लिखा हुआ है डॉइचे ओपर, ओके। तो मगर आप सही हो सर, क्योंकि वो वुमन के लिए था मेरे ख्याल से, या कुछ वो डॉइचे U-Bahn का स्टेशन होगा वो। करेक्ट, आप सही हो, ऑपोजिट साइड ही है डॉइचे ओपर। तो ये रेक्टन साइड, ये भी करेक्ट है सर, रेक्टन साइड या टू द राइट साइड। auf der rechten Seite कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। auf der rechten Seite ist die Deutsche Oper। एक बार हम लोग एक बार वापस से जो रेस्ट्स लिंक्स ऐसे करके एक जगह आया था ना, ये रहा, एक बार इसको किया हुआ है, इसको केवल एक बार पढ़ना है। हर्ष सारा रीड कर दो एक बार, लेफ्ट राइट वापस हो जाए सही, सारे एक बार बस पढ़ दो। GNG here rest, GNG here link, GNG geradeaus, GNG die Straße entlang, GNG bis zur Ampel, GNG bis zur Kreuzung क्रॉसिंग, हाँ। GNG die zweite Straße links, GNG an der Kirche vorbei, GNG über den Platz। यस, तो मतलब रह के वापस से यही चीजें आएंगी कुल मिला के। किसी को बताना है तो गेहनजी रेस्ट्स मतलब राइट में चले जाओ, गेहनजी लिंक्स लेफ्ट में चले जाओ, गेहनजी गिराड आउस सीधे चले जाओ, सुअर अम्पल बिस सुअर टिल द रोड लाइट, यस ट्रैफिक लाइट, बिस सुअर क्रोइत्सुंग क्रॉसिंग तक चले जाओ, फिर स्वाइटे स्ट्रासे लिंक्स सेकेंड स्ट्रीट लेफ्ट एंड ऑन देयर किर्चे फॉरबाई। इसका मतलब है कि चर्च आएगा लेकिन रुकना मत, सीधे चले जाना और आगे। ऑन फॉरबाई है ना, उसके सामने से आगे निकलना है आपको। और यूबरडेन प्लाट्स जो भी
जो प्लाट्स, इसको बोलते हैं प्लाट्स, इसके ऊपर से चले जाना, रुक मत जाना। ओके, आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का कुछ बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। यस सर। इसका लिसनिंग ट्राई करना आप घर पे। किया था क्या वीकेंड पे लिसनिंग किया था? हाँ सर। कुछ दिक्कत आई उसमें? हाँ सर। बताओ। एक्चुअली 140, ओके। हाँ, जो दिक्कत आई पहले उसको लेते हैं। हाँ, value the whole thing you had given for exercise. So 141 was okay, but 148 page में थोड़ा दिक्कत आया। हाँ, वो जो दिक्कत वाला अभी करते हैं डिस्कस। 140th this one, well से बेरूफ है जिन दास, this one That one. And they said they were conversing something, but I couldn't find what they were talking about. okay, This was fine. The NG order MK, that was fine, sir. But then maybe the तो इसमें तो ये इतना ही कह रहा है कि आप इसको बोल के रिपीट करो बस। something else, sir. हाँ, इसमें कहीं और होगा। एक बार इसको एक बार ये ट्राई करते हैं, फिर अगले पे आएंगे। सो हियर वेल से बेरूफ है जिन दास ह्यूरन जी, ये कह रहे हैं कि सुन के बताओ कि कौन से प्रोफेशन की बात है। तो आवाज सुन के, जैसे मान लो रेलवे स्टेशन की आवाज सुन के आप बताते हो ये रेलवे स्टेशन है, ऐसे प्रोफेशन में क्या आवाज सुनेगी, या तो बाल काट रहा होगा तो कैंची की आवाज सुन सकती है। ऐसे ही ट्राई करते हैं अपन, एक मिनट, मोमेंट। And this one, sir. दिस वन, Benjamin von Beru. Something about this Guten Tag. At the end they say their strong is shown. I don't know this Shakespeare heard it, but it was on 148 page. ओके, And they tell about the cost of the something they bought, the stamp. And it was around 899, and he finds it is costly. एक बार सुनते हैं हम लोग, पेज नंबर 140। ओके, Maybe before this, the previous page. मोमेंट। Übung 5 B. Hallo, ich heiße Benjamin Herbst. Mein Geburtstag ist der 17.10.1978. बर्थडे, मिसिंग इंफॉर्मेशन लिखनी है। This is fine, sir. Fine? Next one, And yeah, then- yeah. They start with Guten Tag. Okay. That's exercise. नो प्रॉब्लम, Übung 7 1. सुनेंगे एक बार पूरा। Guten Tag. Guten Tag. Reparieren Sie auch Motorräder? Das Licht ist kaputt. Ja, ja. Bringen Sie das Motorrad in die Werkstatt. रिपारियरन जी औख मोटोरेडर, मोटोरेडर मतलब मोटरसाइकिल्स भी रिपेयर करते हो क्या? जिसने बोला या ब्रिंगन जी इन वर्कस्टार्ट, वर्कशॉप में ले आओ। 2. Hallo, sind Sie frei? Ja, In die Zillestraße 9 bitte. aber gern. इन दी शिलरस्ट्रासे 9 बिटे, शिलरस्ट्रासे 9, शिलरस्ट्रासे 9 में आ जाओ। aber gern Something else have written. Huh? Right. Something else have written, sir. I couldn't find what they were saying. ओके नो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा सर ये नहीं ये साउंड ठीक से नहीं है या मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा है। ओके, मैं एक बार ये क्या बोल रहा है मैं मेरी तरफ से आपको एक बार सुना देता हूँ, बता देता हूँ एक एक लाइन, और उसके बाद में घर पे फिर सुनना। ठीक है, एक बार मैं क्या करूंगा, अभी ये क्या बोल रहे हैं वो आपको वापस से बोल के बताता हूं।
कई बार इनकी आवाज नहीं आती समझ में। They talk too fast, sir. Gut. Ja, ja. Bringen Sie das Motorrad in die Werkstatt. Bringen Sie das Motorrad in die Werkstatt. Bringen Sie, bring das Motorrad, Motorcycle in die Werkstatt, Workshop. Next. 2. Hallo, sind Sie frei? Hallo, sind Sie frei? Ja. In die Zillestraße 9 bitte. सीधा ही बोल दिया इसने, कॉमन जी वगैरह कुछ नहीं बोला। इन दी सिलर स्ट्रासे 9 बिटे। सिलर स्ट्रासे कोई स्ट्रीट का नाम है, जैसे ग्योटे स्ट्रासे, शिलर स्ट्रासे, 9 बिटे, वहां आ जाइए। Aber gern. aber gerne मीन जरूर। 3. So, wie schneiden wir die Haare? So, wie schneiden wir die Haare? बाल कैसे काटे? Naja, ich möchte sie kurz haben. Ich möchte sie kurz haben. छोटे करवाने हैं मुझे तो। Ich möchte sie kurz haben. बालों के लिए बोल रही है, मुझे छोटे कराने हैं। Ich möchte क्या sie बोलते हैं सर? kurz haben. Kurz का मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट। Ich möchte sie kurz haben. Kurz. Sie haben aber doch so schöne Haare. और Sie haben doch aber so schöne Haare. आपके इतने प्यारे बाल तो हैं, छोटे क्यों करा रहे हो? कई करते हैं ऐसे पंचायती, बताते हैं भाई एडवाइस तो देंगे वो। 4. नेक्स्ट। Wie kann ich helfen? Mir geht es nicht gut. Wie kann ich helfen? Mir geht es nicht gut. तो पहले वाले में आप समझ गए क्या प्रोफेशन था। अब फ्रॉइजर या फ्रिजॉयरिन, फ्रिजॉयर या, और अभी इसने क्या बोला दूसरा? Wie kann ich helfen? Mir geht es nicht gut. Ich denke, ich bin krank. Mir geht es nicht gut. Ich denke, ich bin krank. कौन सा प्रोफेशन हो सकता है? मेरा हाल ठीक नहीं है, मुझे लगता है मैं बीमार हूं। Krankhaus. सो क्रांकन हाउस तो जगह होगी और प्रोफेशन आर्ट्स होगा। Na, dann untersuche ich sie erst einmal. Machen. Dann untersuche ich sie erst einmal. तो पहले मैं थोड़ी जांच कर लेती हूँ। Sie A. 5. जागन जी आ, मुंह खोलिए, आ करो, डॉक्टर बोलता है ना, ऐसे इसने आ करवाया है। नाउ नेक्स्ट प्रोफेशन। Frau Tobermens, schreiben Sie bitte eine E-Mail an Herrn Wagner. Der Termin mit Herrn Böttger ist am Dienstag um 10 Uhr. Ja, mache ich. Secretary. सेक्रेटेर, सेक्रेटेरिन, क्योंकि बॉस ने ऑर्डर किया है कि वही उसको मेल वेल कर दिया क्या? यस या मखेश, हाँ ठीक है करती हूँ बॉस। Ich rufe auch Frau Späth an. Sie haben morgen mit ihr einen Termin. Oh ja. Wann denn? Um 14 Uhr. 6. सो नाउ दिस डायलॉग इज फिनिश ना, कि उसने बताया कि आपको भी एक अपॉइंटमेंट भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रोफेशन। Der Schrank hier ist schön. Was kostet er? 899 Euro. Das ist teuer. देयर श्रांक इज शोन। श्रांक खरीदना है। श्रांक क्या होता है? अलमीरा टाइप. अलमीरा टाइप में, ठीक है। तो प्रोफेशन क्या हो सकता है? हो सकता है टिशलर हो, कारपेंटर भी हो सकता है ना। सो ये अलग अलग प्रोफेशन। I was writing whatever they were saying. I was writing in German, sir. So I didn't go to read what they're asking me. So maybe I went wrong there. हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। सर ये A1 यूरन में ऐसे ही आएंगे सर? स्टैंडर्ड ये A1 वाला ही रहेगा। एग्जाम में ऐसे ही आएंगे? अगर ऐसे आएंगे तो मैं तो फेल होऊंगा सर। तो
अभी मत दो एग्जाम, अभी मत दो एग्जाम, पूरा कोर्स करने के बाद दो। मेरा तो नवंबर में कर लिया था मैंने। ओके, बहुत बढ़िया। तो फेल थोड़ी हुए, सर नवंबर में एग्जाम दे दिया था क्या? नवंबर में रजिस्टर किया था सर, फरवरी के लिए। हाँ, फैब के लिए किया ना, तो फिर फेल क्यों हो गए? मगर listening is kind of tough, sir, because they say very fast. बार बार सुनना पड़ेगा, हलवा तो नहीं है भाई, सुनना तो पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना पूरी, बार बार सुनो इनको। और इसके अलावा भी आप तो जर्मनी में रहते हो, आपको तो वहां भी सुनने को मिल रहा है डे टू डे लाइफ में भी, और रेडियो चला के समझ में आए नहीं आए आप तो चालू ही रखो, है ना। कुछ कुछ चीजें एक्चुअली क्या होता है, हमको लगता है कुछ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ आ रहा होता है धीरे धीरे वो। वो इतनी फास्ट बोलते हैं कि पहला कुछ सुनना था उतनी में 10 वर्ड बोलते हैं। Like only one word or two words we can pick up, sir. Before that, they will have learned the whole thing. करेक्ट। तो उसके लिए अपन को A1 वाला ज्यादा सुनना है, ताकि हमारे ज्यादा चीजें पकड़ में आए। और कहां पे दिक्कत आई? That's it, sir. Till 144 I did. 145th page I have done, sir. ओके, सो बाकी भी ट्राई करना है, जिससे इसमें दिक्कत आएगी फिर हम लोग वापस साथ में देख सकते हैं कि भाई ये वाला नहीं आया तो मैं फिर ट्राई करा सकता हूं आपको। आज इसका 8th वाले का लिस्निंग ट्राई करोगे आज, ठीक है, ताकि अपन कोई दिक्कत आए तो कल ही उस पर बात कर ले, क्योंकि गैप हो जाता है फिर वो तरीके से याद नहीं रहता। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट का आपको थोड़ा सा आइडिया देना है एक बार वापस। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या किया था, आपको मैंने बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस जाइन और हाबन, एंड देन रिमेनिंग पार्ट और लास्ट में पेज स्वाई। यही बताया। ये जो पेज स्वाई है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड दैट विल कम ऑलवेज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। और जाइन वर्ब कौन कौन सी हैं वो भी आपको बताई मैंने, उसमें वीडियो में भी और थोड़ी सी लिखवाई भी थी, जैसे फारन, गेहन इफ यू रिमेंबर, कॉमन, देन श्रीमन, लाउफन, रेनन, फालन, वेर्डन, ब्लाइबन, वंडर, अपहारन, अनकॉमन, आइंस्टाइगन, आउस्टाइगन, einschlafen, zurückkommen auch, zurückkommen, einschlafen, dann aufstehen, gebären, sterben, सो इनका पेज 5 भी बोलना पड़ेगा। गेहन का किगांगन, फारन गेफारन, कॉमन श्रीमन, कौन सा फॉर्म एक बार रिपीट कीजिए। गिकॉमन,
नहीं, ये क्या फॉर्म है? जाइन फॉर्म? ये हम लोग एक्चुअली क्या है, कुछ वर्ब लिख रहे हैं, अभी कुछ वर्ब लिख रहे हैं और उनका प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म लिख रहे हैं। जैसे अच्छा। इंग्लिश में गो वेंट गोन, गो वेंट गोन, तो हम लोग गो और गोन लिख रहे हैं, गो लिख दिया और गोन लिख दिया, जो हमको चाहिएगी वो। तो गेहन लिखा, पेशवाई, इसको इसका नाम है पेशवाई, पास्ट पार्टिसिपल, यस। सो लाउफन का गिलाउफन, रेनन का फालन, वेर्डन, ब्लाइबन, गिबलीबन, पासियरन। गे तो नहीं था ना इसमें, वांडर्न, गिवंडर्ट, अब फारन, अबगेफारन, अनकॉमन, अनगेकॉमन, आइंस्टाइगन, आइंगस्टीगन है भैया, आउसस्टाइगन, आउसगेस्टीगन, आइंस्लाफन, आइंगेस्लाफन, aufstehen, aufgestanden, श्रुकॉमन, श्रुगेकॉमन, गिबेरन, स्टर्बन, गेस्टोर्बन। ये मान लो मोटी मोटी, ये तो मैंने लिख दिए, ये पहले भी लिखे और अभी आपको इस बहाने से एक बार वापस रिपीट कराया। तो इसका मतलब ये है, ये वर्ब आए ना तो सेकंड पोजीशन पे अपन को जाइन लेना है। ये वर्ब आए तो, और ये वर्ब नहीं आए तो हाबन लेना है। हर बार कोई तो वर्ब होगी। Got it? जैसे मान लो मैं बोलूं गेहन का है टू गो, ही हैज गोन, तो जाइन वर्ब आएगी तो ये तो समझते हो, इसके साथ बिन आएगा, डू के साथ, एर एस जी के साथ, वियर के साथ, जिंड, ईयर, जाइड, जी और जी, जिंड, ये वाला। अब ये वर्ब सेकंड पोजीशन पे आनी है जाइन, तो सेकंड पोजीशन पे अगर जाइन आएगी तो कैसे आएगी? जाइन जो है वो खुद थोड़ी आएगी, वो तो इसको भेजेगी, राइट? मतलब अकॉर्डिंगली। यस, इस बिन गेगांगन। अगर ये बोलना हो दे हैव गॉन, वो तो गए, दे के लिए क्या आ जाएगा? क्या होगा? यस। फालन का मतलब गिरना होता है। बोलो मैं तो गिर गया। अगर कोई बोले मैं साइकिल से गिर गया तो क्या बोलेगा? इस बिन फोम फाराट, फोम फाराट गिफालन। ये जो गिफालन है वो तो लास्ट में आएगा ना, यही मतलब है कि ये लास्ट में आएगा। बाकी की जैसे साइकिल से गिर गए का आप कहां से गिर गए वो यहां पे आ जाएगा बची हुई चीज। तो ये तो बात हुई जाइन की।
तो जाइन होगा तो ऐसे कर लेंगे अपन, लेकिन अगर जाइन नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो चीज और समझ लो आप, ये चीज तो पहले की करी हुई थी। अगर जाइन नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन बचता है हाबन का। हाबन का, पहली बात तो हाबन का कंजुगेशन वापस लिख देता हूं, भूल गए हो तो, इश हाबे डू एयर एस जी वियर ईयर जी एंड जी हाबन। यस, ये है। तो इनके अलावा वर्ब दिखेंगे तब बात करेंगे हाबन की, तो अभी तो करने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा वर्ब दिखेगी तो क्या दिखेगी, हो सकता है जूखन दिख जाए, हो सकता है कोखन दिख जाए, माखन दिख जाए, राइट। तो यहां पे एक तरह से मैंने मान लो माखन, जूखन, फ्रागन, कोखन, ऐसे 3-4 वर्ब लिख लूं मैं, तो ये वर्ब तो लिख ली, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए इसका पेशवाई बनेगा क्या। तो इसका फॉर्मूला है कि शुरू में तो लगा दो गे और लास्ट में लगा दो ईएन की जगह टी, तो ये क्या हो गया, जूखन का क्या हो जाएगा, फ्रागन का और गेकॉक्ट। तो ये हो गया तरीका एक पेशवाई बनाने का। अब अगर कोई बोले कि मैंने खाना बना लिया, तो क्या बोलेगा, सेकंड पोजीशन पे हाबन आएगी या जाइन आएगी, हाबन आएगी, क्योंकि कोखन इसमें नहीं है। तो क्या बोलेगा, मैंने खाना बना लिया, इस हाबे 10 एसन गेकॉक्ट, ये हो गया। अब मान लो ये नहीं हो, कोई दूसरी तरह की वर्ब आ जाए, तो कैसी आ सकती है, दूसरी तरह की इस तरह की वर्ब आ सकती है जिसके लास्ट में ईयरन हो, दूसरी कैटेगरी की, जैसे कॉम्बिनियरन, ग्राटुलियरन, पासियरन, नोमिनियरन, ग्राटुलियरन। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको पेशवाई बनाना सिखा रहा हूं। जैसे ईयरन, सो फॉर एग्जांपल आपने बोला पासियरन वहां पे है, तो पासियरन जो वर्ब थी ना, उसका पेशवाई उस, तो इस तरह का वर्ब का पेशवाई बनता है, तो ईएन की जगह टी लग जाता है, तो वो बनेगा पासियर। अगर कॉम्बिनियरन हो तो ग्राटुलियरन हो तो, ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा इन वर्ब का। इनके अलावा सेपरेबल वर्ब्स दिखेंगी आपको। सेपरेबल वर्ब्स में क्या होगा, जैसे मान लो aufhören फॉर एग्जाम्पल, अब जागन, या फिर अनकॉमन, इस तरह से कोई न कोई वर्ब आएगी, तो उसका कैसे बनाना है, ह्योरन का। मान लो यहां पे माखन वगैरह का किया है, यहां पे अगर ह्योरन होती तो क्या करते, गेह्योट करते ना, गेह्योट करते, तो यहां भी उसका गेह्योट ही कर देना है, लेकिन यस, लेकिन आउफ गेह्योट हो जाएगा। ये जो गे है ये बीच में जाएगा, समझ गए। अब जागन है तो क्या हो जाएगा, सेपरेबल नहीं है सर, ट्रेडमार्क नहीं है क्या? अपहरण है ना, उसका भी बनेगा, उसका कैसे बनेगा, ऑलरेडी मान लिया है सर, अपहरण तो ऊपर अपहरण हो गया, बिल्कुल हो गया। मैं उसी का लॉजिक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बस,
उधर तो यहां पे ऑलरेडी जाइन में है। आप ये सोच रहे होंगे यार ये मिक्स कैसे हो रहा है यहां। पहली बात मैंने यहां पे केवल इतनी बात करी कि ये वर्ब जाइन लेंगी, पॉइंट 1। अब इसमें कोई वर्ब जाइन लेंगी, यहां पे केवल इतनी बात करी। अब नीचे वाले पॉइंट में ऐसे मैं बता रहा हूं कि इनका पेशवाई बनता कैसे है। जब मैंने ऐसे बोला कि ये जाइन लेंगी तो इनडायरेक्टली मैंने ये भी बोल दिया कि इनके अलावा जो भी आएंगी हाबन लेंगी। इसका मतलब यही तो निकल गया। तो अब मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि बाकी की हाबन लेगी कि नहीं, ये नहीं सिखा रहा, वो तो पता ही है ये जाइन लेंगी तो बाकी की हाबन लेंगी। लेकिन यहां पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये तो जाइन लेंगी, इनका तो आपको मैंने पेशवाई एक तरह से यहां लिखवा दिया, तो वो तो आप रट लोगे। लेकिन अगर मान लो उसके अलावा कोई वर्ब आएगी तो पेशवाई बनाओगे कैसे? ओके मैंने फर्स्ट वाला रूल देखा और इसमें कोई भी ऊपर नहीं है तो मैंने सोचा यही हाबन का है, मगर ये रूल है पेशवाई बनाने का। पेशवाई कैसे बनता है वो चीज, तो पेशवाई हो सकता है या हाबन भी हो सकता है। हाँ, हाबन और जाइन तो ये तो मिक्स होगा, इसमें है तब तो वो जाइन होगा और इसमें नहीं है तो हाबन होगा। ये तो बात हो गई जाइन हाबन की। अब अपन बात कर रहे हैं कि वो पेशवाई बने कैसे। तो इनका तो बन गया, वो तो लर्न करना है। बाकी मैंने रूल नंबर 1 बताया, नॉर्मली शुरू में जीई लगता है और लास्ट में टी लगता है ज्यादातर में, बट कभी कभी कोई वर्ब ऐसी आती है जिसमें ईयरन होता है, उसमें गे नहीं लगता, केवल टी लगता है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है उसकी मैं बात कर रहा हूं कि थर्ड पॉइंट में हम लोग सेपरेबल लेते हैं जिसके बीच में जीई घुस जाता है। अब आपने बोला कि अब जैसे मान लो अनकॉमन है, सपोज आपने बोला अनकॉमन है, तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कॉमन का क्या होता। कॉमन का तो गे कॉमन ही तो होता। कॉमन जो है देखो, कॉमन का गे कॉमन ही तो था, बस अन और लगा दिया। आगे कौन? ये काउंट नहीं होगा ना? देखो यहां पे, यहां देखो कॉमन का गे कॉमन है ना, तो जाइन से आपको हेल्प मिल रही है। कॉमन का गे कॉमन जो ऑलरेडी, ये जब आप लर्न कर लोगे तब आपको अजीब नहीं लगेगा। फारन का गिफारन वो फिक्स है। अब फारन का आपने लर्न के लिया, गिफारन होगा, तो अब फारन का बनाते टाइम जोर नहीं आएगा क्योंकि गिफारन तो फारन का होता ही है। अब और लगा दिया आपने। नो सर आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे ये ट्रेंड बार है, हमको नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल प्रेजेंट में हम उसको काट के पीछे ले जाते हैं। जैसे इसमें नहीं ले जाते, इसमें एक साथ लिखना है। इसमें एक साथ लिखना है। उससे पता लगेगा कि हम कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं। करेक्ट। सेपरेबल नॉर्मल में तो हम लोग इसको प्रीफिक्स को लास्ट में ले जाते थे, बिल्कुल सही, लेकिन यहां पे नहीं ले जाएंगे, यहां पे एक साथ आएगा। क्यों? क्योंकि यहां तो लास्ट में, वो वैसे ही लास्ट में ही ला रहे हैं इसको, पेशवाई फॉर्म को तो वैसे ही लास्ट में लाना है। आपको कुछ इर्रेगुलर वर्ब भी लर्न करनी पड़ेंगी। जैसे ये तो 2-3 फॉर्मूले हुए, इसके अलावा कुछ इर्रेगुलर वर्ब है, 10-15 मैं लिखवा देता हूं, 10-1 जो अभी दिमाग में आएंगी, उसकी हेल्प से फिर कल सेंटेंस बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के। जैसे गीबन, नेमन, जेहन, लेजन, फर्गिसन, बिकोमन, स्प्रेशन। और ये सारी इनफॉर्मल वर्ड्स आर फॉर हाबन, राइट? यस, सारी हाबन, उसके अलावा जो भी है सारी हाबन।
गिबन का होगा गिगेबन, नेमन का गिनोमन, जेहन गिजेहन, लेजन गिलेजन, फर्गेशन का सेम रहता है फर्गेसन, और बिकोमन का भी सेम बिकोमन। स्पर्शन का गिस्प्रोखन, डिंकन का गिडाख्ट, एसन का गिगेशन, त्रिंकन का गित्रुंकन, गित्रुंकन। गेबन का मतलब है टू गिव, नेमन इज टू टेक, जेहन इज टू सी, लेजन इज टू रीड, फर्गेसन इज टू फॉरगेट, बिकॉमन इज टू गेट, स्प्रेशन इज टू स्पीक, डेंकन इज टू थिंक, एसन is to eat and trinken is to drink। ऐसे ही फिंडन और स्नाइडन और ब्रिंगन, बस इतना ही लिखना है आपको। फिंडन का गिफुंडन, स्नाइडन का गिश्निटन, ब्रिंगन का गिब्राख्ट। ये वाली वर्ब आपको लर्न करनी है। ये इर्रेगुलर वर्ब्स है सारी, जो कोई रूल फॉलो नहीं करती। अब आपको सेंटेंस में जब इतनी लर्न हो जाएंगी ना, तो आपको हर बार पता रहेगा कि यहां जाइन लगेगा कि हाबन, क्योंकि उनके अलावा तो हर बार हाबन लगेगा, उनमें जाइन लगेगा। ट्रिंकन का है टू ड्रिंक, आपने लर्न कर लिया गेत्रुंकन, और कोई बोले पानी पी लिया, और आपको बोलना है आई हैव ड्रंक वाटर, क्या बोलोगे? इश क्योंकि पेज वाई लास्ट में आता है ना, इस हाबे वासर गित्रुंकन। अब आप इस हाबे ही बोलोगे, इस बिन नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जाइन में नहीं है त्रिंकन। तो आज इतना ही करना है, और होमवर्क के लिए इसकी कोई नहीं है, ये तो अब मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। एक बार पेज नंबर नोट कर लो आप, ताकि यह कल आने से पहले एक बार रिवीजन जैसा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का। पेज नंबर आपको ये जो अभी दिखा रहा हूं ना टेक्स्ट, इसमें से केवल प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बना के लाने हैं। पेज नंबर 164। इस टेक्स्ट में से आपको प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस ढूंढना है बस, आप अपने आप ही समझोगे। पेज नंबर 164। यस, 164 एक्सरसाइज 2। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को ढूंढना है, और एक और है बस, दैट इज पेज नंबर 166। इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को ढूंढना है। दोनों में ढूंढ लिया तो समझ लो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका।